Hello dear students, now today with the unit 2 of the financial data analysis, the chapter, the unit that you are having is understanding of financial statements. In this chapter, we are going to go with the detailed study of financial statements. Financial statements क्या होते हैं, उसे किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that will be very important for you. So सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियोस में मिल जाएंगे. इसके लिए चलो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को. यूनिट 2, दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ जैसे कि हमने हमारे लास्ट यूनिट में बात की थी कि हर एक बिजनेस का एक रिजल्ट होता है. सेम जैसे आप लोगों का एक रिजल्ट है, पूरे साल में आपकी एग्जाम्स होती है और उसका एक रिजल्ट आता है, वैसे ही बिजनेस का भी एक रिजल्ट आता है. बिजनेस डू हैव देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयर रिपोर्ट कार्ड्स इन विच दे आर पास और फेल इज मेंशन एंड इट इज टू बी एनालाइज्ड. तो इसको नंबर में आप कैसे जानेंगे? From an annual report. What is an annual report? It is a comprehensive document that a company publishes on an annually basis to provide the information to its shareholders, its investors and other stakeholders. आगे भी हमने ये word देखा था. Stakeholders means write down in the stakeholders in bracket users, USERS, the users of financial data, जो financial statements को यूज करते हैं अपने अपने फायदे के लिए और अपने एनालिसिस के लिए, सो दैट दे कैन टेक सम फाइनेंशियल डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजंस. सो अपने परफॉर्मेंसेस, अबाउट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, इट्स एक्टिविटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स. It serves as a communication tool to keep the stakeholders informed about the company's operation achievements, challenges and future plans. So, what are the components of the annual report? देखिए annual report कैसा होता है. It includes a cover page in which company's name and logo or a tagline and trademark and slogans are available. ये एड्रेस किया जाता है शेयर होल्डर्स को. सो इट इज ऑफनली रिटन बाय CEO or the chairman, and this letter provides an overview of the company's performance over the past years, highlighting the key achievements, discussing the challenges and outline ऑफ द फ्यूचर स्ट्रेटेजीज. तो ये लेटर शेयर होल्डर्स को एड्रेस करके बनाया जाता है चेयरमैन के द्वारा. फाइनेंशियल हाईलाइट कितनी होती है इसमें, क्या होता है? दी सेक्शन दिस सेक्शन समराइजेस द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस in a concise format, including the key metrics such as revenue, net income, earning per share and other significant financial ratios. तो ये सारे ratios की भी information हमारी तरफ से दी जाती है financial statements में. Now, management decisions and analysis, MD&A. Management decisions and analysis is a narrative section which is written by management specially, that provides analysis and explanations to the company's financial results as well as its overall business performance, including the significant events and trends. तो हमारे मैनेजमेंट का क्या एनालिसिस है कंपनी के बारे में, ये बताया जाता है, ये नरेशन किया जाता है हमारे मैनेजमेंट एंड डिसीजन एनालिसिस टीम के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Now in this section we provide all the details of financial statements, like what statements they will be. There are income statements, profits and loss statement जिसको भी हम कहते हैं. ये कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स के बारे में, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दैट वॉट एवर रेवेन्यूज यू हैव जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, और उसके सामने आपने कौन से रोज के खर्चे किए हैं अपने ऑपरेशंस यानी बिजनेस के रोजिंदा काम के लिए. व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग, देन क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी टू सेल. ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होती है. Now in balance sheet, it provides a snapshot of company's financial position at a specific period of time in showing its assets and liabilities to the shareholders equity. तो बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, ऐसी चीजें जो हर साल कैरी फॉरवर्ड होती जाती है. राइट. सो विद दिस, नॉन करंट, करंट assets and non-current and current liabilities
along with the owners fund, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बैलेंस शीट में से. नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट अराउंड where the cash has been used, कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ पे कैश जा रहा है. The detailed sources and uses of cash during the reporting period, showing how the changes in balance sheet accounts and income affects the cash and cash equivalent. तो कहाँ से आ रहा है कैश, सबसे ज़्यादा किस एक्टिविटीज़ में से है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से. तो इसके बारे में भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मिलती है. Statement of changes in equity. It explains the changes in equity during the reporting period, including the details of shares that are issued and issuances of dividends and other equity related transactions. यानी owners का क्या transaction हमारे business में रहा है, हमने owners को कितना investment पे क्या dividend दिया है, उनकी तरफ से कितना finance हमें मिला है, सबकी detailed information. So these are the main in which in this chapter we are going to focus on only two, that is income statement, profit and loss statement and balance sheet, isn't it? So let us have a detailed information about this strategies about the management now. और अच्छा, इसमें एडिटिंग चाहिए होगा. आई वॉज कंप्लीटिंग दिस बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? तो 5th पॉइंट तक एडिटिंग चाहिए रहेगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. जहाँ पर 5th का एक्सप्लेनेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर कट लगा देना. Note the time. Now, notes to financial statements. These are the detailed explanation and additional information related to the items presented in the financial statements. They provide the context, clarify and clarity of accounting policies and disclose the additional information that are not presented elsewhere. Suppose अगर आपने कुछ debentures mortgage करके रखे हुए हैं, isn't it? या फिर किसी asset के सामने आप किसी liability के सामने किसी asset को mortgage कर रहे हैं, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन. एंड ऑफन अबाउट कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में जो आपने सुना है, एक इंफॉर्मेशन नोट्स के द्वारा दी जानी चाहिए, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी जाएगी. 7th will be auditor's report. This is prepared by company's independent auditor, providing an opinion on whether the financial statements presented are true and fair and if any suggestion is required for that. तो ये auditors का अपना एक रिपोर्ट होता है, हमारे financial statements के साथ दिया जाता है. Corporate governance report, which discusses the company's corporate governance practices, including the board composition, executive composition, risk management and compliance with the regulatory requirements. तो ये हमारा corporate report तैयार किया जाता है according to the corporate governance practices. Now, sustainability report अगर ज़रूरी है तो if applicable, increasingly common. This section details our company's efforts and performance regarding the environmental, social and governance, ESG is also known as, issues such as sustainability initiatives, community engagement and diversify, and it also includes the inclusion efforts. तो sustainability report कि business कितना sustain करेगा, how much capacity of risk taking we have, if applicable तब ये ज़रूरी बनाया जाता है. Another all information on the risk segment, on analysis and risk factors and strategic outlook, right? Now, providing the financial statements. Accounting is the language of business. इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लाइक बैलेंस शीट, वी हैव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने आगे भी देखा कैश फ्लो के साथ. सो किस टाइम पे किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर, यानी स्टेक होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टर, इंफॉर्मेशन टेकर. तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में से जो यूजर किस हिसाब से इंफॉर्मेशन ले रहा है, व्हाट डेटा दे एक्चुअली नीड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा दिस रिपोर्ट्स आर मेंशन्ड. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are of two types. As per the Indian Companies Act 2013, shareholders are required to be informed periodically, quarterly with the limited financial details and annually with the fully audited financial detail. For listed companies, there are
many other obligatory requirements also, all right, which are also to be complied with from and time to keep the investors informed regularly. तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्टैंड अलोन एंड consolidated financial statements. Now, what are these both the formats? Let us understand them. Standalone financial statements. It provides a snapshot of single entity's financial health, typically a company or a business unit, विदाउट कंसिडरिंग इट्स रिलेशनशिप विथ अदर एंटिटीज. एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे एक सोल प्रोपराइटरशिप होता था, उसकी अपनी एंटिटीज, हाउ इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट देयर assets and liabilities, their income and expenses, just a basic information about that, and making them very independently aware about the decision making and a valuable information for the external stakeholders like that are investors, creditors, to access the entities standalone performances and financial health. तो यहाँ सिर्फ कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो बाकी की एंटिटीज के साथ आपको कनेक्ट नहीं करेगी. एंड अदर देन दिस वी हैव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. On the other hand, consolidated financial statements provides the performance of a parent company and its subsidiaries also in a single entity. यानी यहाँ पर आपको जितने भी हमारे businesses हैं इन सब के बारे में सारी information मिलती है. Let's have a look why it matters. See, for investors, underline here investors, it matters to take the complete picture of financial strength before investing. So underline this. They offer the complete picture of group's financial strength before investing. Underline creditors. Creditors के लिए क्या ज़रूरी होता है? Creditor कौन है जो हमें माल सामान देते हैं क्रेडिट पे? Suppliers, right? They are the banks that are lending us the money and suppliers that are lending us the goods. तो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी अपनी क्रेडिट वर्थिनेस पे अपने टाइम पे प्रॉपर रह पाएंगे या नहीं, राइट? तो हमारा रीपेमेंट कैपेसिटी, अंडरलाइन हियर एबिलिटी टू रीपे लोन्स, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रेडिटर्स to know this. And analysts that use both the standalone also and consolidated statement also to analyze the clear picture. So now we have a case study here which includes Reliance Industries, crazy business empire. आज इस business को कौन नहीं जानता है, right? अगर बात करें तो रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में रिलायंस गैस हमारे साथ इस कंपनी को रिलायंस ने बनाया हुआ है. नाउ पोलिस्टर्स में आप देखा जाए तो रिक्रॉन एंड रियलान. पोलिस्टर्स के लिए इनकी ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स. वी हैव रिलायंस डिजिटल एंड रेस्क्यू. रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी में भी रिलायंस है. गो फॉर द रिफ्रेश, वाइल्ड बीन एंड A1 मार्ट. Also for media, News 18, Colors, Woot, Money Control, yes, it's the Reliance app, isn't it? And Nickelodeon, it's the media where Reliance is available. For digital services, we have many options, जिसमें से बहुत ही important है आपके पास Jio Saavn. For digital services, Jio News. Then Netmeds is the one of important part of it in digital services. Then retail stores में आप देखें तो Smart Bazaar, Smart Points that are from Reliance, Reliance Fresh, Reliance Jewels, and Trends, one of the best, and which is not included here also, Zudio, it's a Reliance product. Then textiles में देखा जाए तो यहाँ पे only Vimals we have from Reliance, and all the other combinations available. Further, Reliance Petroleum में Reliance Auto LPG जो LPG में भी है, Reliance CNG also which is in Jio, now converted into Jio, Fuel for You. Then e-commerce में Ajio, JioMart and Jivame. Then polymers में in Reliance Wood, RelX. Also in payments, Jio Money, yes, which has been introduced by Jio last year. FlexiPay and telecom में Jio. So इतने सारे जगहों पर कुछ ऐसा रह भी गया हो कि रिलायंस का सबके सब्सिडरी कंपनीज यहाँ पर अवेलेबल ना की गई हो. So in consolidated financial statements, you can see all the subsidiary companies as well as the parent company who is investing in that subsidiaries companies. Now, you can
see here we can figure out like 4 to 5 significant subsidiaries based are on these detailed numbers, include the sales profit, return on assets and return on equity also. तो इस तरह के काफ़ी सारे consolidated numbers हमें मिलते हैं consolidated balance sheet से. Now we have balance sheet here. First to be understand, let us have a look to the balance sheet. We better know that from the accounting point of view, now if we have a balance sheet here, so balance sheet is what? Balance sheet is the statement that shows the assets and liabilities and financial position of the business as on a specific period of time, as on the specific date. Now accounting point of view से जितने भी हमारे benefits हैं, by one account getting the benefit, it may be like giving the benefit is to the another account, isn't it? यानी एक तरफ बेनिफिट जा रहा है तो दूसरी तरफ बेनिफिट आएगा, विच इक्वल्स टू डेबिट और क्रेडिट, जो हमने आगे सीखा हुआ है. नाउ एट द एग्रीगेट लेवल अगर देखा जाए तो सारे डेबिट और सारे क्रेडिट बैलेंसेस हमेशा सेम होने चाहिए. नाउ डेबिट बैलेंसेस में आपके पास क्या क्या होते हैं? वी हैव ऑल द assets and all the liabilities. We have credit balance, isn't it? So we say here we have assets as a debit balance, which must be always equal to the liabilities, right? But further, liabilities are divided into two parts. One is the internal liability and one is the external liability. बिजनेस की लायबिलिटी जो उनके ओनर्स के लिए, उनके स्टेक होल्डर्स के लिए होगी, उसे हम कहते हैं कैपिटल. जो हमने बाकी शॉर्टर टर्म में, हमारे शॉर्टर डेज में 11th एंड 12th में देखा था कि उन्हें कैपिटल वर्ड दिया जाता है, इसीलिए पार्टनर्स का लाया हुआ पैसा कैपिटल. बट in broader term, now it will be for joint stock company, it will be shareholders funds, यानी उसे कहा जाएगा इक्विटी. इसीलिए हमारे पास A इज इक्वल टू सी प्लस एल का जो इक्वेशन आता था, ये बैलेंस शीट में बहुत काम लगता है. दैट मीन्स A इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब कैपिटल को हम कहेंगे यहाँ पर ओनर्स इक्विटी. दैट मीन्स ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स फंड. सो फाइनली इफ आई से कि इसे लायबिलिटीज को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो पॉजिटिव लायबिलिटीज विल बिकम नेगेटिव. सो लायबिलिटीज को माइनस करने से we will get the owner's equity. When we subtract liabilities from assets, we'll get the owner's equity. ये हमने काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चंस जो थे, सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि कैपिटल हम फाइंड करते थे, या फिर गुडविल की बात करें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड एक वर्ड आता था जिसमें हम करेंगे असेट माइनस लायबिलिटीज. तो कैपिटल कैसे फाइंड किया जाएगा? Therefore capital will be asset minus liabilities. सो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया हमारा बैलेंस शीट को लेकर के. तो आइए देखते हैं कि बैलेंस शीट को किस तरह से आगे आप प्रेजेंट करेंगे. Now mainly in balance sheet we have two types and they are the main headings, that are equity and liabilities एक main heading है and asset side एक मेन हेडिंग है. तो अगर आपको पूछा जाए कि ये मेन हेडिंग कौन से है बैलेंस शीट में, तो देयर आर ओनली टू मेन हेडिंग्स. डू रिमेंबर दिस. अब लायबिलिटीज के साथ ये वर्ड आपके लिए आएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज. डू रिमेंबर. अब लायबिलिटीज में आगे जाते हुए तीन बाइफरकेशंस हैं. वन इज इक्विटी दैट इटसेल्फ, यानी कि इक्विटी का दूसरा नाम यहाँ पर रहेगा शेयर होल्डर्स फंड. वी हैव shareholders funds. Then we have two main bifurcation of liabilities, that is non-current liability and current liability. Non-current is also known as long-term liabilities and current liabilities that are for very short term. तो current liabilities are here. तो ये तीन चीजें अब हमारे बैलेंस शीट के सब हेडिंग्स हो गए. These are the subheadings of balance sheet. The shareholder funds, non-current liabilities, current liabilities. Now,
assets are very simple, that are non-current asset. Asset will be bifurcating with only two parts. One is non-current asset, that are for long term, and one is current asset, that are for short term. So do remember, इन्हें headings कहा जाएगा, and you may be asked with the question to bifurcate them as per the headings. आप given information को bifurcate करें, इस तरह का question भी आपको आ सकता है. Now shareholders funds becomes very easy to understand if we get a shortcut here. Understand it. Shareholders funds में दो ही चीज आएगी, एक तो equity, that is equity share capital, that can be clubbed into shareholders fund. So one will be here share capital, SC stands for share capital, isn't it? And second will be reserves and surplus. जो reserves हैं surpluses हैं ये owners के हैं. So यहाँ दो चीजें हो जाएगी, share capital and reserves and surplus, only two things in shareholders funds. Now non-current liabilities will be in three letters, generally LOL, it means lol, right? आप इसको इस तरह से याद रखें. Now what is LOL? Whenever we say L, it means for long term, right? And S, it will be for short term. ये चीज आगे याद रखिएगा, खास आपके लिए रहेगी. So non-current means when I talk about non-current things, it will be for long term. So first will be long term borrowings, isn't it? First it will be long term borrowings, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो कुछ भी पैसा मांगा है, बोरोइंग्स, दैट विल इंक्लूड डिबेंचर्स, डेट, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का डिपॉजिट हमारे पास, राइट. देन ओ स्टैंड्स फॉर अदर, जहां पे भी ओ आएगा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड एल स्टैंड्स फॉर प्रोविजन, बिजनेस इज मेकिंग प्रोविजन, दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, isn't it? तो लंबे समय के लिए, लाइक इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी ग्रेचुइटी फंड या पेंशन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये बड़े टाइप का प्रोविजन है, इसे लॉन्ग टर्म में निकाला जाएगा. सो यू कैन गो विद द LOL. L स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, O अदर नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड L लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. नाउ करंट लायबिलिटीज को आप ऐसे याद रखो, वी विल राइट TOSS, टॉस, बट S सबसे पहले लिखा जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे STOS. ऑलराइट, ऑलराइट. तो STOS. नाउ अगेन S स्टैंड्स फॉर, आगे यहाँ पर क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो नाउ द S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. अच्छा, ये दूसरा वाला जो S है ये किसके लिए था? पहले था बोरोइंग्स और दूसरा प्रोविजन. सो सेकेंड वाला S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन. ऑलराइट, फिर से एक बार, नॉन करंट में था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो करंट में आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, isn't it? लॉन्ग टर्म प्रोविजन था नॉन करंट में, सो करंट में आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. वेरी इजी. नाउ ओ का हिंट आपको मिल ही गया होगा. O स्टैंड्स फॉर अदर करंट लायबिलिटीज. ऑलराइट. नाउ हियर T स्टैंड्स फॉर ट्रेड पेएबल्स. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स, दैट इंक्लूड्स द क्रेडिटर्स, द बिल्स पेएबल्स, ये सारी चीजें ट्रेड पेएबल्स में लिखी जाएगी. एंड इसके अलावा जितने भी अदर करंट लायबिलिटीज हैं, यानी कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके इनकम्स दैट आर रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी चीजें अदर करंट लायबिलिटीज में आएगी. So here we are done with the equities and liabilities. So very important and key points are here share capital, जिसमें equity share capital, preference share capitals ये सारे आ जाएंगे. Whatever your equity shares are either fully paid और partly paid, सारे equity shares की information रहेगी. अच्छा, इसमें calls in arrears कितने हैं ये भी equity shares में information मिलेगी. Then RNS stands for reserves and surplus. What is your profit that we used to add to the owners first? तो यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से बताया जाएगा ये हमारा प्रॉफिट है. एक और हिंट, आपने पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर हमारे पास
प्लस किया जाता था सरप्लस, इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में. इट मीन्स वट एवर आंसर ऑफ योर प्रॉफिट that you are gaining from profit and loss account, that will be added here in reserves and surplus. तो आपका सरप्लस यहाँ से प्लस किया जाएगा, और अगर कोई डेफिसिट आता है तो उसे माइनस किया जाएगा, राइट. दैट मीन्स अ लॉस. ऑलराइट. दूसरा कैपिटल रिजर्व, किसी तरह का अगर जनरल रिजर्व या आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे यहाँ से आपकी प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है, राइट. सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस. नाउ नॉन करंट असेट्स, हाउ दे आर टू बी रिमेंबर्ड एंड करंट असेट्स. पे अटेंशन, यहाँ पर शॉर्टकट रहेगा आपका नॉन करंट असेट्स के लिए FNLO. खास करके याद रखना FNLO स्टैंड्स फॉर, सबसे पहली चीज F यानी असेट्स के अंदर आ जाएंगे हमारे पास फिक्स्ड असेट. F यानी फिक्स्ड असेट जो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे. अब इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गए, isn't it? Also N stands for non-current investment. Now you are going to invest for a long term. आपको याद होगा कि हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स भी पहले हुआ करते थे. पहले जो बाइफर्केशन था फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स का होता था, इन बिटवीन हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आते थे. तो अब इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए है उन्हें नॉन करंट में रखा गया है, एंड इन्वेस्टमेंट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए है उन्हें करंट इन्वेस्टमेंट्स में रखा गया है. तो दे आर नाउ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. तो हियर वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नाउ कुछ अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस, यानी आपने लोन अगर किसी को दी है, लोन लेंट, दैट विल कम हियर. एंड O मीन्स अदर नॉन करंट असेट्स. फिर से एक बार FNLO स्टैंड फॉर फंड्स लो. ऐसे याद रखना इसे कि आप अगर किसी से फंड्स मांग रहे हो, isn't it? तो सामने वाला बोलेगा फंड्स लो. तो फंड्स लो मीन्स F stands for fixed assets, N stands for non-current investment, long-term investment, then long-term loans and advances, and O for other non-current assets. Now, current assets seems to be more simpler than this, and it is CIT CSO. इस तरह से इसे याद रखेंगे. What is this CIT CSO? Understand it. See, यहाँ पर था फिक्स्ड असेट, अब यहाँ करंट असेट आपका एक हेडिंग ही यहाँ पर बन चुका है करंट असेट, isn't it? तो फिक्स्ड असेट्स विल बी विथ करंट असेट्स कंपेयर्ड विथ इट. अब आपका जो फिक्स्ड असेट है, वैसे करंट असेट तो यहाँ पर मेन हेडिंग आ चुका है. सो करंट असेट में आएगा आपके पास, now earlier it was non current investment, now it will become current investments. You are going to have current investments, isn't it? Now I stands for first here inventories, INVN, inventories. अकेला सिर्फ INV लिखोगे तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज दोनों में कंफ्यूजन होगा. सो राइट INVN, इन्वेंटरीज. इन्वेंटरीज में क्या आएंगे? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी स्टॉक दैट यूज टू बी सोल्ड बट आप उसे सेल कर पाए नहीं है. तो वी हैव closing stock of materials, stock in trade, stock of all each and every item that we have in the business. Acha, earlier it was trade payables, so now in current assets we will have trade receivables. Yes, सही समझे. bills receivable and debtors ये दोनों यहाँ पर होंगे. Now C stands for अपना सबसे important cash as a current asset. So यहाँ पर होगा cash and cash equivalent. इसका पूरा नाम कहा जाता है once again cash and cash equivalent, यानी कैश और कैश की ही तरह जिसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. कैश, चेक्स ऑन हैंड, डिमांड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, देन बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज कैश ऑन हैंड. देन आगे था आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. अब होगा आपके पास एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म के लिए किसी एम्प्लॉय को आपने एडवांस दिया है, क्रेडिट दिया है, तो यहाँ पर कहा जाएगा, लिखा जाएगा. देन O stands for other current assets, whatever your outstanding income or prepaid expense, that will be here. So finally how we are going to remember it? Non-current assets will be FNLO. You can write the short forms,
isn't it? And current assets will be CITCSO, जिसमें से C stands for current investments, then inventories, then T for trade receivables, then cash and cash equivalent, S says short term loans and advances, and O stands for other current assets. Let's go with the practical questions related to this. You are given with the balance sheet in your मटेरियल ऑल्सो, तो आपके पास अगर ये बैलेंस शीट है, अब आप इसे पूरी तरह से याद कर पाएंगे. A lot more theory is given to it. Let us focus on them. And regarding this, what are the items that will differ? अब जितना आप अभी देख चुके हैं, सीख चुके हैं, उसमें से हमारे पास इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि आप असेट्स में, नॉन करंट असेट्स में, वी हैव हियर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. स्पेशली जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे आर यूजिंग फॉर आर फिक्स्ड असेट, which is the important part. Now capital work in progress, mark it very important. Investment property means the property that has been invested by you. Your investments in the property, that is also for long term. Also goodwill, that is a tangible asset, and also that is an intangible asset, and other intangible assets like we have licenses, software, franchises, isn't it? कॉपीराइट्स, माइनिंग राइट्स, सॉफ्टवेयर जो आपके पास रहता है, जैसे आप देख सकते हैं, बराबर है, बट उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इजंट इट? उसे आप छू नहीं सकते हैं. इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. So these intangible assets under the development, then biological assets, whatever assets you have, and that can be also considered as the fixed asset. Then financial assets and deferred tax assets that are net for us. ऐसे tax assets जिनको हम आगे carry forward कर रहे हैं. एक आपको याद होगा advertisement suspense, that is not written off, वो इसमें आता था, and other non-current assets. So they have been given with the very basic information about this. A detailed information if you want, और with a proper precise अगर format आपको चाहिए, तो हमारे पास यहाँ से ये फॉर्मेट अवेलेबल किया जा रहा है. PDF आपको यहाँ पर मिल सकती है डिस्क्रिप्शन में, एंड वी कैन प्रोवाइड यू with the assistance of this answer. Now we have given with the definition of liability, equity, equity share capital. आइए इसे डिस्कस करते हैं ब्रीफ में. Liability is the present obligation of the entity that is arising from the past event. यानी if anything is payable by you from the past events, that is known as liability, and which is expected to result in an outflow from the entity. Cash used to be goes out, but embodying the economic benefits, इस benefits के लिए आपका cash जाना चाहिए. And this is the definition according to Indian Accounting Standard, Indian Accounting Standard 37. Now equity represents the company's liability towards its owner, that are shareholders, owners and stakeholders, right? तो इसको owners fund भी कहा जाता है. It is also called shareholders funds or owners fund. Now equity share capital. Now equity means the amount of one shareholder, isn't it? When you multiply with the number of shares that are held by the shareholders, you will get the fund corpus, which is known as equity share capital. It represents the paid up capital or unpaid capital that are still lying with us, bonus shares or cash other than shares, and with in detail study of equity share capital. Also calls in arrears that are paid or unpaid, या forfeited shares जो आपने बहुत पहले से लेके रखे थे बट उन्होंने पैसा पे नहीं किया. शेयर होल्डर्स जब पैसा पे नहीं करते हैं तो उन्हें आप forfeit कर देते. तो इस तरह के सारी इंफॉर्मेशन आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में रहेंगी. Let us go with the practical questions related to it. So here you can see we have a detailed study, and with the information that we have already gained, जो हमने आगे लिखा था, इसे everyone would go with it, and kindly note down that share capital के लिए हम use करेंगे the word SC, reserves and surplus के लिए R and S word. Now money received against the shares warrant जो हमें shareholders से मिले हैं, तो this is the money received. इसे
SW करके भी हम लिख पाएंगे, बट बहुत ही कम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आने वाला है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Share application money that is pending with the allotment, isn't it? Now if you have gone through with any pro rata allotment, तो यहाँ पर पैसा आपका लिखा जाएगा. You remember we used to take more money from the shareholders keeping their allotment pending with us. तो इसे कहा जाएगा प्रो रेटा अलॉटमेंट. यानी एप्लीकेशन से ज़्यादा अगर किसी ने पे कर दिया है तो हम उसे रिफंड अगर नहीं करते हैं, इट विल कम हियर एंड पेंडिंग अलॉटमेंट तक रहेगा. एंड जैसे ही आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, फिर ये यहाँ से हटा दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट we have the shortcut here that we have already discussed, LOL for non-current liabilities. Also with the current liabilities हमने TOS का वर्जन रखा था STOS. You can mark it here. Further assets के अंदर जो हमने funds कैलकुलेट किए थे F&LO. F stands for these all main headings. ये इतने के लिए F आएगा आपका. फिक्स असेट जिसमें टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल है. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, isn't it? Now non current investment, it was NCI. Deferred tax net, that is tax asset. इसके आगे LTLA लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने देखा. अदर नॉन करंट assets. Now current assets, as we have already discussed, this is the same thing, CIT, CSO. Let's go through with the practical questions. Now, first of all, we are going to solve the examples related to the balance sheet that is as per the Schedule 3 of Companies Act that we are going to prepare. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अवेलेबल होने जा रहे हैं आगे. तो कृपया ध्यान दें, आप इसको अच्छे से समझ लो और किस हेडिंग में कौन सा सब हेडिंग आएगा ये आपको बताना रहेगा, isn't it? तो सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहा हूँ. आई एम गोइंग टू गो विद दैट. सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू नोट डाउन इफ़ यू आर हैविंग दिस इन योर मटेरियल. इफ़ यू आर हैविंग, तो आप अपने मटेरियल के साथ इससे अच्छे से लिख लें यहाँ पर कौन सा किस जगह पर आपको लिखना है. सो मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग अभी तक जो हमने डिस्कस किया पूरे फॉर्मेट के हिसाब से, इसमें मेन हेडिंग और सब हेडिंग दोनों आपको लिखने हैं. ऑलराइट, सपोज डिबेंचर्स इज फॉर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसका मेन हेडिंग है, और डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है. नाउ पब्लिक डिपॉजिट्स, इट इज ऑल्सो पब्लिक का डिपॉजिट आपके पास है इन योर फॉर्म. आई एम गोइंग टू राइट दी शॉर्ट फॉर्म्स. इट इज नॉन करंट लायबिलिटी. पब्लिक का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आपकी कंपनी में है, तो पब्लिक डिपॉजिट्स इज लॉन्ग टर्म मनी बोरोड फ्रॉम पब्लिक. It is again non-current liabilities. Now securities premium. This is security premium is the amount that you are asking from the shareholders. So this is shareholders funds and you are asking this amount from them at one, and it is the total capital profit for you. Therefore it will be added to your reserves and surplus. ये आपके reserves and surplus का part होगा. Capital reserve, द रिजर्व केप्ट आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. आपने रिजर्व रखा है साइड पे, इसीलिए ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. किसी भी तरह का रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और एनी काइंड ऑफ रिजर्व विल बी अ रिजर्व एंड सरप्लस, isn't it? नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम को इंपॉर्टेंट मार्क करें. इट कैन बी आस्क्ड in your exams. Now forfeited shares account, the shares that were not able to pay the money, you have cancelled them. आपने उनकी जो ओनरशिप है कैंसिल कर दी है, तो शेयर forfeited we will write in share capital. shareholders funds और share capital is one and the same, तो आप इसे share capital में लिखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें forfeited shares. Now share capital, it will come in shareholders fund, which will be the main heading. Share capital will be the subhead. Now इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर. सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है,
एंड इसकी ड्यू डेट भी आ गई है डिबेंचर्स पे। सपोज आप यूं समझिए कि आपके पास दो तरह के इंटरेस्ट हैं जो हम डिटेल में अभी फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस बाद में भी आएंगे। तो दो तरह के इंटरेस्ट होंगे आपके पास। मान लीजिए अगर साल भर में आपके दो ड्यू डेट्स आती हैं, एक सितंबर में है और एक मार्च। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक सितंबर में है और एक मार्च में है। तो आपकी जो ड्यू डेट है इसमें अगर मार्च के दिन इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है तो आप बोलोगे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, बिकॉज ड्यू डेट हैज बीन अनाउंस्ड। ड्यू डेट यहाँ पर आ चुकी है 31 मार्च। एंड अगर आप सितंबर में इंटरेस्ट गिन रहे हैं तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है बट उसकी ड्यू डेट अभी तक आई नहीं है, तो ड्यू डेट इज नॉट ऑन सितंबर, ड्यू डेट उसकी मार्च में है। देयरफॉर सितंबर वाला इंटरेस्ट गिना जाएगा इंटरेस्ट accrued but not yet due on debentures. However, both the types of interest will be very important part here, so mark it very important. Interest accrued and due, it is to be payable, so interest will be a kind of short term liability. आपका इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, वो करंट लाइबिलिटीज रहेगा एंड इट विल बी रिटर्न इन अदर करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, current maturities of long term debts. Long term debts are going to get mature currently, तो again short term के लिए है and it is a liability, it is current liability, it will be written in other current liabilities, OCL. This is very important. Eighth one, advance received from customers, it is a kind of pre-received income. ये अभी तक आपकी इनकम नहीं हुई है बिकॉज सर्विस इज स्टिल पेएबल, अभी भी सर्विस पे करना बाकी है। इट मीन्स ये शॉर्ट टर्म में ही आप सर्विस देने के बाद इसे क्लोज कर दोगे। दिस इज अ टेम्पररी अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो स्पेशली टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम याद रखते थे, इट इज करंट लायबिलिटी एंड टू बी सेटल्ड in other current liabilities subhead. Now sundry creditors, again sundry creditors is a part of current liabilities for us. Sundry creditors is here in the heading. Main headings will be current liabilities and sundry creditors will come under the heading trade payables. We are going to receive the sundry creditors here in trade payables. सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, दोनों चीजें यहाँ पर ट्रेड पेबल्स में काम लगने वाली है। नाउ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, होल्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो ऊपर आपने देखा अलग है और अब जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ रहा है अलग है। Isn't it, my dear students? समझने वाली बात है कि सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जाता है जब शेयर्स को इश्यू किया जा रहा है एंड इश्यू करते टाइम अगर आपको याद हो तो अगर रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट, सबसे पहले तो ये वर्ड लिख लीजिए, ये आपके लिए अगर नया है तो राइट डाउन रीपेमेंट। आप रीपेमेंट करने के लिए रीपेमेंट पे जिन डिबेंचर्स को आप प्रीमियम में पे करने वाले हैं, सपोज आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद, you are going to pay the money, you have asked rupees 10,000 from a debenture holders, 100 rupees face value, isn't it? तो आप अगर ये 100 रुपीज का एक फेस वैल्यू का डिबेंचर 25 रुपीज एक्स्ट्रा में पे कर रहे हैं, इट इज 125 दैट यू आर गोइंग टू रीपे आफ्टर 3 years or 5 years, isn't it? So after 3 or 5 years that you are going to pay, this premium will be known as 25 rupees extra. This premium is premium on redemption of debentures and this will be a long term liability for you. Non-current liabilities, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगा आपके लिए और इससे आप अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में सेटल करेंगे। यू आर गोइंग टू पोस्ट देम इन द हेडिंग अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अब होता यह है कि आगे सपोज समझ लीजिए 5 साल के लिए आपने डिबेंचर्स लिया है तो पहले 4 साल ये नॉन करंट लायबिलिटीज में रहेगा और जो आखिरी साल है, जो लास्ट ईयर है, उसका फाइनल ईयर है, 5th ईयर, उसमें आप नॉन करंट लायबिलिटीज से इसे ले आएंगे करंट लायबिलिटीज, बिकॉज नाउ इट विल बी फॉर वेरी शॉर्ट टर्म and within a very short span of 12 months you are going to redeem, repay that debenture. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ ब्रैकेट में within next 12 months या 8 months या 3 months ऐसा 12 months किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दी गई होती मंथ्स में
तो आपका ये जो आंसर है सीधा करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज पे हो जाता बजाय नॉन करंट के। दैट क्लियर? ऑलराइट, नाउ ट्रेड पेएबल्स इटसेल्फ, ट्रेड पेएबल्स तो एक खुद ही एक मेन हेडिंग है, तो करंट लायबिलिटीज में हम लिखेंगे ट्रेड पेएबल्स। Provision for tax, it is the tax that you are going to pay in a very short term, so it is a short term provision. ये प्रोविजन फॉर टैक्स वही टैक्स है जिनकी आप ऐड देखते हैं कि जुलाई में या फिर अगस्त में या सितंबर में आपकी ड्यू डेट आ गई है, तो ऐड में बताया जाता है मित्रों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट તમારી દરેકે દરેક માહિતી રાખે છે। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है कि आप कितना क्या खरीद रहे हैं, कितना गोल्ड है आपके पास, कितनी गाड़ियां हैं, और आप उसका टैक्स पे करें, और इसकी टैक्स की ड्यू डेट आ चुकी है। तो ये जो ऐड अगर आप देखेंगे तो साल भर में आपको ज़्यादातर जून जुलाई के बाद देखने मिलती है, बिकॉज इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड यू द टाइम कि फाइनेंशियल अकाउंट्स भैया आप बना लो 31 मार्च को, मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने ले लो, और 3 महीने के बाद डिसाइड करके आप चेक कर लो आपका फाइनल अकाउंट्स पे कितना टैक्स बनता है, आपके प्रॉफिट पे कितना अमाउंट बनता है, एंड पे दैट टैक्स बाय द ड्यू डेट, इजंट इट? तो आपने मार्च में ही टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अप्रैल में टैक्स कैलकुलेट कर लिया, आप साइड पे रख रहे हैं कि आने वाले ड्यू डेट पे इस टैक्स को पे किया जाएगा। तो दिस इज द शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए ही आप इसे साइड पे रख रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू पे दैट फॉर द गवर्नमेंट इन फ्यूचर। सो दिस इज current liability. So next, 13th, the surplus. Now surplus means the balance in the statements of profit and loss account, credit balance। हमारे बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये एक तरह का हमारा प्रॉफिट हो गया। दिस इज द प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट को आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में लगाएंगे, यू आर गोइंग टू ऐड दिस पॉजिटिव अमाउंट इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड ये शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा रखा जाएगा। Now apart from it we are going through with the deficit, okay, if not profit, अगर deficit आता है तो it is the amount of loss। So now from shareholders fund we are going to deduct this amount from the deficit। Once again I am repeating, now डेफिसिट अगर आता है तो डेफिसिट का अमाउंट है लॉस, सो नाउ दिस लॉस अमाउंट इज टू बी डिडक्टेड। जैसे सरप्लस को ऐड किया जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स में, लॉस इज गोइंग टू गेट डिडक्टेड, यू आर गोइंग टू माइनस फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस किया जाएगा। नेक्स्ट, द अमाउंट इज ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। नाउ प्रपोज्ड डिविडेंड इज द अमाउंट दैट हैज बीन टेकन आउट फॉर डिविडेंड। आपने शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड प्रपोज कर दिया है ऑलरेडी, सो आपने इसे ऑलरेडी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस कर दिया है, इजंट इट? तो इसके एक्चुअली में दो इफेक्ट आते हैं कि आपने रिजर्व्स में से ये डिविडेंड साइड पे रख दिया है, एंड आप इसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बताएंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे आया कि कौन सा मेन हेडिंग आप लगाएंगे, तो यू ऑलवेज गो फॉर द प्रोविजन। इट इज द करंट लायबिलिटी, यू हैव प्रोवाइडेड द अमाउंट aside for the dividend, तो it is proposed dividend। uncalled liability on shares, इसका मतलब है कि it is the uncalled amount। सपोज 10 रुपए के फेस वैल्यू में 7 रुपीज आपने 3-4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा लिए, नाउ फाइनल कॉल मनी इज पेंडिंग, एक 3 रुपए का इंस्टॉलमेंट बाकी है, दैट विल बी कॉल्ड द अनकॉल्ड लायबिलिटी, अनकॉल्ड अमाउंट। अगेन शेयर कैपिटल का पार्ट है ये, तो शेयर होल्डर्स फंड, ओनर का पैसा, शेयर कैपिटल पप्पा का पैसा, isn't it? Now इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इसी के बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि इंटरेस्ट आपने अक्रू कर दिया है, आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो चुका है, बट उसकी ड्यू डेट आ गई है, एंड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इन शॉर्ट अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें ये फर्स्ट वाला अमाउंट है हमारा 31 मार्च का, सेकेंड वाला अमाउंट है हमारा 31 सितंबर का। इस तरह से हमने दोनों इंटरेस्ट आगे भी देखे थे। अगेन both are the part of our current liabilities and other current liabilities will be written। now debenture redemption reserves, ये words आपको बहुत अच्छे से confuse करने वाले हैं, let us understand them। डिबेंचर को रिडीम करना है इन फ्यूचर, उसके लिए आप
रिजर्व निकाल रहे हैं। तो रिडेम्पशन से पहले आप रिजर्व वर्ड पे ध्यान देना। ऑल द टाइप ऑफ रिजर्व हमने क्या सीखा था? ऑल द टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आर रिजर्व्स इन सरप्लस। दिस इज पपास पैसा, ओनर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखा जाएगा। नाउ एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, यू हैव टेकन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट इज लॉन्ग टर्म। तो अब ये अदर करंट लायबिलिटी के जगह पे जाएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड द मेन हेडिंग्स विल बी नॉन करंट लायबिलिटी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दैट इज पेएबल, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के लिए जो प्लान है ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा उस टाइम भी उसके लिए कुछ अमाउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ अमाउंट साइड पे रख रहे हैं। ये पीएफ जो आप सुनते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसी की तरह होता है, बट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी, आप ही के सैलरी में से, आप ही के अमाउंट जो आप कमा रहे हो उसमें से आपका अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, राइट? तो दिस इज मनी असाइड, केप्ट असाइड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एंड ये आपको हम देंगे। नाउ वी आर द एम्प्लॉयर, वी आर द कंपनी, ये कंपनी हमारी है और हम इससे लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा प्रोविजन बना के रख रहे हैं। इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वी आर गोइंग टू पे यू एट the end of your service term, that will be for long years with us. So non-current liabilities. All right. Let's continue with the second question, that is the same with us. चलो इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, and let us go with the items. Let us solve them. And 9% debentures. First of all, debentures are not given कि आप ये debentures को किस तरह से कितना रखने वाले हैं। तो always debentures will be for long term. It is non-current liability. एंड अगर ये डिबेंचर्स आपके शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, आखिरी साल में आएंगे, तो उसे करंट लायबिलिटीज में रखा जाएगा। इट विल बी आइदर फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नाउ डिबेंचर्स दैट आर पेएबल आफ्टर 3 years, दैट आर फॉर श्योर फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो डिबेंचर्स हैं उनके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इट फॉर शॉर्ट टर्म, आप बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मांग रहे हो, विच इज अ करंट लायबिलिटी, एंड मनी बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म। बिल्स रिसीवेबल्स आर ट्रेड रिसीवेबल्स, सब हेडिंग है, बट मेन हेडिंग है करंट असेट्स, इट विल बी शोन अंडर द हेडिंग करंट असेट्स। नाउ बॉन्ड्स, and mark important the bank overdraft and bonds. Now bonds means you are borrowing the money for long term, it is long term borrowings. Bonds and building is the non current asset, it is for long term, it is fixed asset that you have seen, and fixed asset में भी हमारे पास यहाँ पे रहेगा tangible, so it is for non current asset and fixed assets tangible properties में इसकी बात होगी, fixed asset tangible. Further, capital advances, the advances you have received, and this one is capital that you have given, the amount you have given for long term, it is for non current asset, इसे हम लिखेंगे long terms loans and advances में. Now capital redemption reserve, कैपिटल को रीपे करने के लिए जो रिजर्व रखा गया है, द redemption reserve that is taken out of capital profits. So this one will be for shareholders funds, reserves and surplus. Further, capital work in progress, it becomes very important. capital work in progress को हमने देखा था कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, सो इट इज कैपिटल WIP. अच्छा, इसका मेन हेडिंग आएगा नॉन करंट असेट, non-current asset will be the main heading. Now checks in hand, yes you guessed it correct, इसे important mark करें, it is current asset, same like cash, it is cash and cash equivalent, CCE, cash and cash equivalents में इसे गिना जाएगा. Next, computer software, it is not computer, a very important software of computer, so it is fixed
which is intangible for us. For long term, non-current assets, fixed assets, and for us it is intangible. Further, copyrights is also the same. Copyrights is gonna be non-current asset, and fixed assets it is for intangible. Fixed assets intangible. Now deposits with custom authorities, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना. ये जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ ये आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं, right? In the exam they are to be asked with more chances, with more clarity. You have to answer them. So deposits with custom authority, आपका deposit custom authority में, यानी आप कस्टम अथॉरिटी को जो पेमेंट करना चाहते हैं वो आपने पहले ही बल्क में कर दिया है. नॉन करंट असेट्स, it is long term loans and advances, you have paid the amount for long term. Now general reserve, it is shareholders fund. ये हर तरह का रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू नाउ टू रिमेंबर. नाउ गुडविल, it is long term non current asset, and again fixed assets intangible asset. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम, आगे भी हमने ये देखा था. इनकम रिसीव हो रही है, इट इज अ करंट लायबिलिटी, इट विल गो टू अदर करंट लायबिलिटी. नाउ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से, काफी लोगों को ये तकलीफ होगी. डेड स्टॉक आपने सुना है, isn't it? But livestock has no relation with the dead stock. Pay attention, very important. For animal husbandries, for the business that are involved in animals, they are having the cattle, they are having the sheep. Suppose a woolen company is taking the wool from sheep, having a very traditional method of taking the real wool, right? तो उनके लिए ये sheep that will be the animal will be a kind of livestock. Suppose डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, अगर मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, अगर मिल्क डिपार्टमेंट, यानी कि आप अमूल का अगर एग्जांपल लेते हैं, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, and if they have the animals, live cattle that are in their farm, suppose, and अगर वो इनसे अगर मिल्क ले रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, right? So this cattle, these cattle will be the livestock for them. So livestock will be current asset, and it will be in inventories. INVN, INVN stand for inventories. आप अगर INV लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरीज में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए INVN लिखना जरूरी है. नाउ लोन्स प्रोवाइडेड, you have provided the loan and it is repayable on demand. जब आप चाहें तब मांग सकते हैं. तो loans provided, it is for now short term. So short term loans and advances. Now loans repayable, इस बार आपने लोन बोरो किया है और जब सामने वाले डिमांड करेंगे आपको ये लोन पे करनी पड़ेगी. इट इज अ लायबिलिटी. नाउ यू हैव बोरोड दिस मनी फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. long term investment, it is non current asset. non current investment itself is the main heading, यही एक main heading है. now loose tools, loose tools means the spanner, the nut, bolt, nail, hammer, isn't it? ये पाना पकड़ वाली जो चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज में, टेक्निकल टर्म्स में, प्रोडक्शन में काम लगता है और इनको मशीन्स को साधने के लिए, मशीन्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. बट ये उतने लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं है हमारे, ये शॉर्ट टर्म है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ टूल्स, इसीलिए टूल्स हमारे करंट असेट गिने जाएंगे. नेक्स्ट, मैच्योर्ड डिबेंचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये डिबेंचर मैच्योर हो चुके हैं, दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी पेड इन द नेक्स्ट 12 months. आने वाले साल में इन डिबेंचर्स को पे किया जाएगा. सो दीज विल बी करंट liabilities and it will be shown now under the heading other current liabilities. तो इससे other current liabilities गिना जाएगा. now debentures will be matured and they are going to be repaid. now same way like this we are going to have
net loss that is shown by statement of profit and loss account. So very important for it, net loss that is shown in the statement, it is same like deficit, it is the loss. So इस loss को हम शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे, इसे यस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या करेंगे, माइनस, माइनस फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस. Outstanding salary, the amount that is payable by you, that is outstanding. Current liability रहेगा, other current liability, isn't it? Very basic adjustment. This was in our favorite kind of adjustments in 11th and 12th standard in first year BCom final accounts also. Now prepaid insurance, insurance that you have paid in advance, now you are going to take the benefit of it. It is current asset for you, isn't it? और इस करंट असेट का आपको अदर करंट असेट में नोट करना रहेगा. करंट असेट, अदर करंट असेट्स विल बी द सब हेडिंग. Provision for tax, again it is coming once more time, current liability, short term provision. Now raw materials, it means stock of raw materials. देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है, रॉ मटेरियल आपने लिया और ये रॉ मटेरियल आगे आप यूज कर रहे हैं अपने ऑपरेशन बिजनेस के मेन काम प्रोडक्शन के लिए. तो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक आपके लिए इन्वेंटरीज का स्टॉक हो जाएगा, इट विल बी करंट असेट. रॉ मटेरियल्स को इंपॉर्टेंट मार्क किया जाए. एनी काइंड ऑफ स्टॉक, अगेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो सामान आपने बना दिए हैं अब उन्हें आप बेचने वाले हो, तो नाउ दी स्टॉक्स यू आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म. सो इट इज करंट इन्वेंटरीज, करंट असेट्स एंड इन्वेंटरीज. स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, अभी हमने देखा था आगे लूज टूल्स दैट वाज इन 21st, वैसे ही स्पेयर पार्ट्स. तो हमारे जितने भी स्पेयर पार्ट्स रहेंगे मशीन्स के, करंट असेट सेम लाइक लूज टूल्स, इन्वेंटरीज. सन्ड्री डेटर्स, अगेन करंट असेट्स, इट विल बी फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटी, टीपी, ट्रेड पेएबल्स के हेडिंग्स में आएगा. नाउ ट्रेड मार्क्स, इट इज द इंटेंजिबल असेट, जो लोगो होता है, मार्क होता है, सपोज ये नाइकी का लोगो, isn't it? तो ये ट्रेडमार्क, इस तरह के जो मार्क्स हैं ये कंपनी को दर्शाती हैं, कंपनी का रेप्यूटेशन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ जुड़ा होता है. तो दिस इज दैट फिक्स असेट में, इंटेंजिबल्स असेट में बताया जाएगा. नाउ अनक्लेम्ड डिविडेंड, very important, both are now unclaimed and unpaid dividend. See, unclaimed by whom? Unclaimed by the shareholders. आपने तो propose कर दिया dividend को, but अब आगे shareholders इसे लेने नहीं आए, मतलब हमें ये दोनों अनपेड है तो भी पे करना पड़ेगा, अनक्लेम बाय शेयर होल्डर से हमें उनके लिए साइड पे रखना पड़ेगा. सो अनक्लेम डिविडेंड इज द करंट लायबिलिटी, इट इज टू बी शोन इन अदर करंट लायबिलिटी, isn't it? होप सो ये सारे आपको क्लियर हो गए हैं. लेट अस प्रैक्टिस मोर 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 एंड मोर. यहाँ पर थर्ड भी हमारे लिए अवेलेबल है. सो वी हैव हियर अनपेड dividend, unpaid dividend, just now we have cracked it. Current liability, it is for other current liability. Now trademarks, again it is repetitive, non-current asset, fixed assets में investment. पब्लिक डिपॉजिट्स, आगे इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया था, यस यस यस, वेरी करेक्ट. पब्लिक डिपॉजिट्स इज द नॉन करंट लायबिलिटी. पब्लिक का डिपॉजिट, इसका मतलब आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बोरो किया है. नेक्स्ट वी हैव फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस, सेम लाइक अर्लियर. नाउ यस, लेट मी एडजस्ट इट. प्रीपेड insurance, so prepaid insurance for us is going to be the current asset. इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा एडवांस में पे कर दिया. नाउ बेनिफिट इज रिसीवेबल, अदर करंट असेट. नाउ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने आगे भी बात की थी. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यानी कि आप 100 रुपीज़ का डिबेंचर, सेम एग्जाम्पल 25 रुपी एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं इन फ्यूचर. सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज फॉर मनी बोरोड ऑन लॉन्ग टर्म, नॉन करंट
लायबिलिटी, NCL स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड इसे लिखेंगे अदर नॉन करंट लायबिलिटीज. फॉर प्लांट एंड मशीन इट इज नॉन करंट असेट, हमारा असेट रहेगा, एंड दिस असेट विल बी आर प्रॉपर्टी, फिक्स असेट फॉर टेंजिबल लॉन्ग टर्म. अगर फिक्स असेट टेंजिबल, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में भी आप बताएंगे. नेक्स्ट, पेटेंट्स. We are going to write this. Patents being developed by the company. कंपनी के अपने बनाए हुए पेटेंट्स, yes. अपने नॉन करंट असेट हैं कंपनी के, intangible assets. Now office equipments. Yes, office equipments will be the long term equipments, non current asset equipments in office that you have, but it is for tangible. Further, loose tools. Yes, current asset. बिल्कुल सही अनुमान लगाया, बट yes, इसके आगे किस में लिखा जाएगा? स्पैनर्स, स्पेयर पार्ट, लूज टूल्स, इन्वेंटरीज, INVN. ऑलराइट. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिबेंचर्स में, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इट इज योर इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर्स ऑफ सम अदर कंपनी. इट इज फॉर लॉन्ग टर्म नॉन करंट असेट. Now it is your investment, non-current investments. Interest due on calls in arrears. अच्छा, ये calls in arrears क्या होता है कि शेयर होल्डर से आपने पैसा मांगा पर शेयर होल्डर्स पे नहीं कर रहे हैं आपको. Now on that interest you are going to charge the interest. On that calls in arrears you are going to charge the interest. So very 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 important, mark करें इसको. This interest is now going to be your outstanding income. Outstanding income कहाँ लिखते हैं? Current asset, other current asset. Interest accrued and due on debentures, ये काफ़ी बार आ चुका है हमारा payment. So current liability, payable amount, other current liability. What about the next? General reserve. Very correct. Shareholders fund, we have this in reserves and surplus. Further, checks in hand. ये जो आपके पास चेक है, it is current asset. Cash in cash, equivalents, ये आगे भी आया था. Next, capital work in progress. Now, capital work in progress itself is the main heading. Non-current asset, mark this one, very important. आगे भी हमने important mark किया था. Capital work in progress. Capital reserve, shareholders funds, we have all the type of reserves and surplus. Now we have calls in arrears. Now pay attention, the calls in arrears that we are having, it is shareholders fund, आगे हमने इसे देखा था, but very important it is जो आपका calls in arrears है, पैसा नहीं आया है शेयर कैपिटल में से, तो शेयर कैपिटल आपने बताए हैं सारे शेयर्स पे, वेदर पेड और नॉट पेड, बट उस पे से अब हम करेंगे माइनस, तो इट विल बी माइनस फ्रॉम शेयर कैपिटल. Very important. And calls in advance, now it is a current liability, isn't it? आपको ऑलरेडी एडवांस मिल चुका है. कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको एडवांस में पैसा दे देते हैं, उनको बोला जाता है करंट लायबिलिटी. जैसे ही हमारा उनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर देयर मनी टू द रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट. तो कॉल्स इन एडवांस गिना जाएगा हमारे लिए other current liability. Now two more, bills payable, it is the current liability, it is trade payables, and accrued interest on calls in advance, very important. देखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स करंट असेट था हमारा, इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे मिला है. और एक बात समझने जैसी है कि कभी भी आपको इंटरेस्ट आए कॉल्स इन अरियर्स, isn't it, तो यू कैन चार्ज only 10% interest as per the law and as per the rule. याद रखना, interest on calls in arrears, isn't it, but however ये देखो 10%,
हाउएवर अगर आपका कोई इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस के लिए है, आपको जो एडवांस मिला है उस पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, याद रखना 12%। सो आप जो पैसा मांग रहे हो शेयर होल्डर से, अगर वो एडवांस में आ गया है 12% पर एनम, 12% ब्याज सालाना आपको पे करना पड़ेगा इस पे। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन दिस वन इज इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे आउटस्टैंडिंग हो चुका है, आपको ये पे करना पड़ेगा। इट विल बी योर लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस समाप्त हो रहे हैं। आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ रहे हैं, और इसके आगे बढ़ने से पहले आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द statement of profit and loss account. Now this we already know that we have all the revenue items that are recorded in profit and loss account. बैलेंस शीट में कैपिटल आइटम्स आते हैं जिनमें आपका पैसा बड़े पैमाने पे किस जगह पे लगा है, वेयर आर दी सोर्सेस ऑफ फंड, कहाँ से आपका पैसा आ रहा है, वेयर आर दी फंड्स अप्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इजंट इट। तो आपका जो अमाउंट है लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, बहुत ही बड़ी अमाउंट में लगा रहता है, बट वेरी रेगुलर एंड वेरी रिकरिंग एक्सपेंसेस जिसे कहा जाए, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चलेगा। तो आपके एक्सपेंसेस एंड इनकम से let us understand how we are going to identify and to find our statement of profit and loss. Now the accounting angle says that we have to match the total income with total expenses. यानी हमारा प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये सिंपल हिसाब की बात है जो हर कोई जानता है कि हमारे इनकम में से एक्सपेंसेस हटा दो, isn't it? इनकम्स अगर ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है, प्रॉफिट मिलेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर हमारे एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो हमें लॉस मिलेगा, isn't it? So let us go with the same logic over here, and we must continue with the statement of profit and loss account. Let us have a look to that. In this revenue from operations, it is the sales that you are going to get. जो भी आपके ऑपरेशन से इनकम मिल रहा है ये सेल्स, यानी आपके बिजनेस का सबसे मेन ऑपरेशन वर्क क्या है, isn't it? इसको आप सेल कर रहे हो एनी सर्विसेज, वेदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो यहाँ से आपको सेल्स मिल जाएगा। देन व्हाट अबाउट अदर इनकम, किसी भी तरह की दूसरी अगर इनकम है आपकी, लाइक इनकम लाइक यू हैव अर्नड एनी कमीशन, अर्नड एनी ब्रोकरेज और स्क्रैप बाय सेलिंग एनी स्क्रैप, तो ये अदर इनकम में गिनी जाएगी। टोटल ऑफ इनकम्स वी आर गोइंग टू ऐड, तो सारी इनकम्स यहाँ 3 नंबर में आपकी ऐड हो जाएगी, 1 plus 2, right? Now expenses, in expenses you are going to have first cost of material consumed for the manufacturing businesses, cost of materials that you have consumed by for making the purchase of goods or for making the finished products. Now इसके अलावा अगर आप trading business में हैं तो you will be having purchases, right? So either you will have cost of material consumed or purchases, isn't it? Now most important will be C here, D for depreciation, C, D, E, F. See, it is in the sequence C, D, E, F, isn't it? ये यहाँ पर haphazardly लिखा हुआ है, but C, D, E, F stand for changes in inventories of finished goods. It means changes in stock. Here we are going to go with opening stock minus closing stock so that we can find the changes because of the stock of finished goods. Now E stands for employees benefits, salary, wages, the contribution to provident fund, everything related to employee. Finance cost incurred on acquiring the finance, like it will be interest on loan, finance cost, interest on debentures that you are incurring, फाइनेंशियल कॉस्ट आपको जो भी लग रहा है बोरोड फाइनेंस पे, that will be here. Then depreciation and amortization expenses. Amortization means that is written off. Depreciation is happening for the tangible things जिनका physical structure है. Amortization goes for the things that are intangible like goodwill, trademark, patent, copyrights. इन सबको amortize किया जाता है, हर साल write off किया जाता है.
उसकी वैल्यू। अदर एक्सपेंसेस जो इन सभी में कहीं पे भी नहीं आया, बट स्टिल इट इज अ काइंड ऑफ अदर एक्सपेंस, लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, then rent, then office expense, other loss by fire, and all kind of expenses. Now finally we are going to do the total of 4, यानी ये सारे expenses का total यहाँ पे कर दिया जाएगा. Now profit we are going to get, how we are going to get the profit? Incomes minus the expenses. इसका मतलब आपका profit आएगा before the exceptional item. Yes, if you have any exceptional items and taxes, right, तो profit आपका find किया जाएगा. After that exceptional items is there and you will subtract that. Then tax expenses you have for current tax or else you have deferred tax. अब ये deferred क्या होता है? हर साल अगर आप टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर करके पे कर रहे हो, लायबिलिटी आपकी रहेगी और कुछ आपका पेमेंट होगा, तो उस टैक्सेस को कहा जाएगा डिफर्ड टैक्स. सो आफ्टर दीज एक्सेप्शनल आइटम्स एंड डिफर्ड टैक्स we are going to find the profit again for the period from continuing operations. जो अभी हमारे काम हैं चल रहे हैं उससे हमारा profit, that means this, number 7 and minus number 8. So after this 9th we are going to find the profit from discontinued operation. जो हमारे बिजनेस आगे चलते थे पर अब नहीं है, अब बंद हो चुके हैं, तो उनकी तरफ से जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. नेक्स्ट टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अगर उसका कोई टैक्स लायबिलिटी है ये कैलकुलेट किया जाएगा. आफ्टर दैट प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस भी कैलकुलेट किया जाएगा. नाउ both the operations, that is from the continuing process and from the discontinuing process, that we are going to record. And अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके बारे में इन्होंने आगे तो इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा नहीं दी है, अगर कोई भी अदर इनकम आपकी है, राइट, दैट विल बी शोन हियर, विल बी एडेड. नाउ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, अदर्स को ऐड करने के बाद, एंड आफ्टर दैट अर्निंग पर इक्विटी शेयर, ईपीएस जिसे बोला जाता है, अर्निंग पर शेयर, इजंट इट? तो आपकी जो शेयर वैल्यू निकलती है, बेसिक एंड डाइल्यूटेड बोथ. अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक ईपीएस? बेसिक ईपीएस इज बेसिक अर्निंग पर शेयर वैल्यू फॉर द इन्वेस्टर. हर एक इन्वेस्टर सोचेगा कि अगर मेरा शेयर का वैल्यू सपोज 800 है, तो उसके सामने मुझे मिल क्या रहा है अर्निंग में? 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, right? So that rupees will be earning per share in rupees. Now this is basic, means all the shareholders that we are having properly for equity shares. But अब diluted EPS क्या होता है कि earning per share of the basic equity shareholders and plus the convertible preference shares, यानी कि अगर ये preference shares in future equity shares में convert हो जाते हैं तो उनका EPS मिला करके आगे वाले के साथ यानी बेसिक के साथ ऐड होगा. प्लस ऑल्सो वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन द अर्निंग पर शेयर फॉर द कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स, यानी डिबेंचर जो आगे कन्वर्ट होंगे इन फ्यूचर इक्विटी शेयर्स में, तो इन सब के मिला करके उस ईपीएस को डाइल्यूट किया जाता है, मीन्स मिलाया जाता है. देयरफॉर इट इज नोन एज डाइल्यूटेड ईपीएस. Diluted EPS is considering all the equity shares plus convertible probable equity shares and plus convertible debentures in future. So this is for continuing period and discontinued operations also. Finally इन सब के earnings को add करके बनाया जाता है the profits. So after these all things, the key terms are given, the things that we have understood, and they are given one by one to us. Kindly go through with this. The link has been provided to you in the description. इस link के अंदर आपको ये material मिलेगा. And in this page number 14 of material, all the information is given, the same that we have discussed. Now what is the accompanying the notes to financial statement? ये जो सारे financial statements आपको ख्याल होगा आपने इसके notes भी देखे थे. Notes are the schedules that we are preparing, isn't it? These are the working notes that are to be prepared to know in detail. Suppose अगर मेरा fixed asset है तो fixed asset में अगर मेरी कंपनी का 10 करोड़ का fixed asset बता रहा है
तो फिक्स एसेट में कौन से फिक्स एसेट है 10 करोड़ में, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा फिक्स एसेट्स की शेड्यूल्स में, उसकी वर्किंग नोट्स में. ओवर देयर आई कैन हैव इन डिटेल इंफॉर्मेशन. यस, 5 crores I have in plant and machine, then 2 crores I have for building, other amount I have for furniture. तो इस तरह से आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है. अब इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको आएंगे कि कौन से नोट्स आपको बनानी है. चलो इस बारे में भी बात करेंगे. आगे चलते हुए नोट्स को आपको बताने हैं. एंड लेट अस गो थ्रू विद द क्वेश्चन फर्स्ट रिगार्डिंग द एग्जांपल्स रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर द schedule schedule 3 of Companies Act. We have 15 items over here. Same, the headings, main head and subhead we are going to find up over here. So let us have it. Wages, it is an expense. अब तो यहाँ दो मेन हेडिंग हो गई हमारे, सिर्फ या तो एक्सपेंस होगा या तो इनकम होगा. इन दो ही मेन हेडिंग्स में हम चलेंगे. एंड सब हेडिंग्स विल बी देयर. नाउ वेजेस, इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट, trading commission. Now trading commission is your expense. It is employees benefit. I am going to mark employees benefit as EMP. All right, so employees benefit expenses, EMP. Selling and marketing expenses. Now these are the expenses which is other expenses. OE stand for other expenses. जो भी marketing और selling का खर्चा आप कर रहे हैं. Now to increase the sales, selling and marketing expenses are incurred. Then sale of product. This is the product that we are selling. It is sales. This is income. It is revenue from operation. Isn't it? Revenue from operation. Next, salary. Again employees benefit. ये हमारा खर्चा हो जाएगा employees पे. Employees benefit expenses. Repair to machine. Now this repair to machine will be our expense. And what kind of expense? Other expenses. Rent of factory. Now this rent of factory is again expense. Other expense related to administrative. Next, purchase of material. Now purchase of raw material will be a kind of expense here. Yes, it will be our regular work. And net purchases यहाँ से मिलेगा. It is also known as net purchase. Purchase minus purchase return. तो raw materials में या cost of materials में या net purchase में इसे आप add कर सकते हैं, purchase of material. Now, interest on loan. It is your expense on the finance cost. Interest का income. It will be the income, other income. Now goodwill, that is amortized expense. Obviously it is under the heading depreciation and amortization. If you remember, we just discussed this कि intangibles को amortize किया जाता है. Now electricity expense, it is administrative expense जिसका कोई heading अलग से नहीं है, other expenses. Now dividend from the companies. Understand this, it is the income that you are earning on the dividend that you have invested. Why are we receiving the dividend? You have invested in some other companies. So income है हमारी other income, dividend. Now discount or loss on issue of debentures. Mark this, very important. ये जो discount है आपका long term, isn't it? डिस्काउंट एक लॉस है, बट इसे आप धीमे धीमे आप इसे हर साल रेगुलरली एमोटाइज करेंगे. सो दिस डिस्काउंट इज गोइंग टू गेट एमोटाइज एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइज. नाउ बैंक चार्जेस, expense related to the bank, and finance cost, bank charges. Now we need to calculate the revenue from operations and other income. Also we need to calculate the total revenue. So याद रखें, revenue from operation and other income,
एंड ऑल्सो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, तो इनके लिए सबसे मेन ऑपरेशन वर्क टू अक्वायर फाइनेंस, बोरोइंग फाइनेंस, पैसे का लेन देन नहीं होगा इनके लिए इम्पॉर्टेंट, या इनका मेन ऑपरेटिव वर्क नहीं होगा। इनका मेन ऑपरेटिंग वर्क हो सकता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो चलो इसे अगर फाइंड करते हैं तो इन्हें आप यहीं पर मार्क कर पाएंगे। सेल्स रिटर्न, तो फर्स्ट अमाउंट सेल्स वी आर गोइंग टू ऐड, simply sales return we will minus from the sales. Now sale of scrap, it is simple thing for other income है आपके लिए, तो इसे प्लस किया जाएगा. Now interest on FD, fixed deposits, now be attentive, इसे आप अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते टाइम नहीं लेंगे, हाउएवर इसे टोटल रेवेन्यू के लिए लिया जाएगा, टोटल रेवेन्यू TR प्लस. फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द गुड्स लिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन FD आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने इंटरेस्ट मिला आपको ऑन FD, सो FD पे मिला हुआ जो रिटर्न है फिक्स डिपॉजिट पे, ये ऐड किया जाएगा, बट टोटल रेवेन्यू के लिए, ऑपरेशंस के लिए नहीं. नेक्स्ट, you have earned the dividend because it is your investing activity, not to be taken in operations, only TR plus. So let us, if we add the amount gone through with the basic things, let's go with it. So now we are going to have revenue, total revenue also, and revenue from operations also. So revenue from operations, in this sales we are going to write first after deducting the sales return, yani sales minus sales return. Sales was 6 lakh, 6 lakh minus 1 lakh, the net sales I am gonna get here 5 lakh rupees, isn't it? इसमें हम ऐड करने वाले हैं सेल ऑफ स्क्रैप. now this sale of scrap is your regular other expense, other income. सेल ऑफ स्क्रैप इसमें से 12,500 प्लस किया जाएगा, so 5,12,500 is gonna be your final revenue from operations. However, yes, आपको total revenue जो find करना है, इसके लिए total revenue के लिए एक और calculation करना रहेगा. So revenue from operation and other income 5,12,500. now plus इसमें इंटरेस्ट ऑन FD ऐड किया जाएगा, इंटरेस्ट इनकम ऑन FD 15,000. ऑल्सो आपको डिविडेंड भी मिला है, डिविडेंड अमाउंट वी आर गोइंग टू ऐड ₹5,000, जिससे हमारा टोटल रेवेन्यू मिलेगा 5,12,500 प्लस 15,000 प्लस 5,000, 5,32,500. So this is our final answer. Total revenue is 5,32,500. Now next we have question number 3. Calculate the revenue from operations, other income. Revenue from operations and other income आ गए, and total revenue. Let us go with that. Miscellaneous income. Yes, we will revenue from operation में लिया जाएगा, प्लस करेंगे. बट नाउ इट इज फॉर फाइनेंशियल कंपनी, बी अटेंटिव. अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए जैसे पहले इंटरेस्ट था, डिविडेंड था, ये तो फाइनेंशियल कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट बाहर होगा ही, और बाहर इन्वेस्ट करना ही इसके रेवेन्यूज में आएगा, और बाहर इन्वेस्ट करने से ही इसे पैसा कमाना है.
तो अब जो पहले की चीज़ें हमने टोटल रेवेन्यू में ऐड नहीं की थी उन्हें भी ऐड करनी है, राइट? सो मिसलेनियस इनकम, यस वी आर गोइंग टू ऐड. इंटरेस्ट ऑन लोन, यस इट इज द मेन इनकम. आपने लोन दिए और उस पे इनकम कमाई, बिकॉज यू आर अ फाइनेंशियल कंपनी, यू आर गोइंग टू गिव लोन, लेंट द लोन अमाउंट, तो उस पे इंटरेस्ट आया, वी आर गोइंग टू ऐड. प्लस डिविडेंड दैट वी आर अर्निंग, तो हमने डिविडेंड अर्न किया, वी आर गोइंग टू ऐड देम. प्लस बट profit on sale of building, no, this will not be taken into consideration because this is the investing activity. So if we add only 3 amount here, यहाँ आप बिना कैलकुलेटर के ही अमाउंट निकाल सकते हैं. 18,10,000 is the answer. This is the revenue from operation other income. एंड नाउ टोटल रेवेन्यू अगर निकालना है तो टोटल रेवेन्यू के लिए बाकी का 30 लैक्स भी ऐड कर दो. सो 18 लाख प्लस 30 लाख टोटल रेवेन्यू का आंसर बिना कैलकुलेट किए आप यहाँ पर बता सकते हो इजीली 48,10,000. यहीं पर सॉल्व हो गया. Other sub questions we have here. Compute the cost of material consumed. Cost of material consumed. एक तरह से ये हमसे नोट्स बनवा रहे हैं, शेड्यूल्स बनवा रहे हैं और इससे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना. नाउ ओपनिंग इन्वेंटरीज. नाउ मटेरियल कंज्यूम के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा. आई थिंक यू डेफिनेटली वुड हैव रिमेंबर दिस. सी we have one formula here. Always remember how we are going to find it. See, ओपनिंग स्टॉक जो भी आपके पास रहेगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो पिछले साल सेल नहीं हुआ, इस साल आपको सेल करना है, तो आपके पास इस साल आया है ओपनिंग स्टॉक में, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया. प्लस ऑलवेज यू आर गोइंग टू परचेज द मटेरियल और उसे आप सेल करोगे, इसलिए मटेरियल परचेज को प्लस किया जाना चाहिए. एंड माइनस द क्लोजिंग स्टॉक. इतना याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ material minus closing stock will give you always the cost of material consumed. So here opening inventory is 4,50,000. Here itself we can calculate 4,50,000 plus 22,000 they have, 22 lakhs they have given, isn't it? And we add them both, we are going to get 26,50,000. Now 26,50,000 minus 25 lakh, it means यहीं पर आपका आंसर आ गया है, you are going to get 1,50,000 as your answer. तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आंसर इज 1,50,000. Further, compute the cost of material consumed for the following. Now, यहाँ materials and finished goods दोनों अलग अलग दिए हैं. See, they both are different. Raw materials that are yet unfinished, yet the work is going on with them, right? तो इन materials को जब हम लगाएंगे काम पे, उसके बाद जाकर के एक प्रोसेस से गुजरेगा और यहाँ फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा. तो मटेरियल्स अलग है, फिनिश्ड गुड्स अलग है. लेट अस कैलकुलेट फॉर बोथ, for material and for finished goods also in the same manner. So opening stock 6,50,000, we are going to add opening 6,50,000, opening stock plus purchases, we are going to plus 6,50,000 material में लिख दिया. ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है 3,50,000. नाउ मटेरियल्स सिर्फ परचेज किए हैं, तो परचेज ऑफ मटेरियल्स वी आर गोइंग टू राइट इन मटेरियल्स ओनली प्लस परचेजेस 23,50,000. 6,50,000 and 23,50,000, it means 30 lakhs we have purchased the material. Now closing inventory we are going to minus.
क्लोजिंग इन्वेंटरीज में माइनस करेंगे हम 5,50,000, सो क्लियरली द आंसर विल बी देयर। अच्छा, फिनिश गुड्स में आपने कुछ भी परचेज नहीं किया, बट फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है 2,50,000, तो ये जो दोनों हमने टेबल बनाया है इसी में हमारा आंसर आ जाएगा, isn't it? Let us prepare and let us calculate. So when you calculate 30 lakhs minus 5,50,000, 24 lakh 50,000 is the answer for finished goods. It will be 3,50,000 minus 2,50,000 rupees, 1 lakh. Answer is here. इट्स वेरी सिंपल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स दे हैव गिवन, बट हो सकता है कि आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी तक लगे हो, राइट? ऑल राइट, नॉट टू वरी, वी आर हियर, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सोल्यूशन, जिन्हें सिर्फ आप एटलीस्ट सुन भी लोगे तो भी आपके जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। नाउ कंप्यूट अगेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम। नाउ यहीं पर आप लोग फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास अब मटेरियल्स हैं। देखो तीन चीजें होती है, मटेरियल्स दैट आर इन रॉ फॉर्म। अब इस पे काम अगर किया जा रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, दिस इज द सेकंड स्टेज, एंड द थर्ड स्टेज इट बिकम्स द फिनिश गुड्स। यहाँ पर आपको मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, सो लेट अस फाइंड फॉर मटेरियल्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। चलो, मटेरियल्स का ओपनिंग इन्वेंटरीज इज 2,50,000। Opening inventory for work in progress is 3 lakhs. You can pause the video and definitely go with the answers ahead than me. Yes, एक टीचर हमेशा यही चाहेगा कि स्टूडेंट जितना हो सके आगे आगे और आगे अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाए। सो प्लीज सॉल्व इट, डेफिनेटली सॉल्व इट अहेड देन मी, आई विल फील वेरी गुड, बेस्ट। सो मटेरियल परचेज, मटेरियल्स के कॉलम में लिखा जाएगा 16 lakh. No, we can't purchase work in progress definitely, so 0. Now closing inventory of materials, इसे माइनस किया जाएगा 3,50,000 minus, and also you can put them in bracket. Closing inventory of work in progress 2,50,000. Yes, I hope your answers are ready before me. Definitely you're gonna get the answer. 16 lakh plus 2,50,000, we are getting 18,50,000 minus 3,50,000, so 15 lakh is the answer for cost of material consumed for materials, and here 50,000, कितना easy है, 50,000 work in progress का cost of material consumed for work in progress. My God, you are rising so early. Congratulations to the one जिनके करेक्ट आंसर आए हैं डेफिनेटली। एंड आगे बढ़ते हुए और सादे सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, बहुत 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 ज़बरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ बेकर्स लिमिटेड इज द नेम ऑफ द फर्म। अब चेंज इन इन्वेंटरीज का मतलब है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो बहुत इजी हो गया, यहीं पे आपको मिल जाएगा, isn't it? ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड आपको तीनों का टोटल करना है एंड में, तो आपको पूरे टोटल चेंज ऑफ इन्वेंटरीज का पता चल जाएगा। सो फॉर द ईयर एंडेड 31st March, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट फुल्ली from the following information and determine the amount that will be shown in the statement of profit and loss। इसीलिए मैंने आपको अच्छे से कहा कि टोटल करना जरूरी रहेगा एंड में। नाउ अगेंस्ट द चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, तो इन तीनों के सामने कौन सी अमाउंट आप लिखने वाले हो? लेट अस फाइंड द इंडिविजुअल अमाउंट फर्स्ट। 4,50,000 माइनस 4 लाख, यू आर गेटिंग द पॉजिटिव चेंज इन इन्वेंटरी। देखो ओपनिंग स्टॉक आपका ज्यादा है और जो बाहर जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दैट यू हैव सोल्ड, it is less, it means still you have positive stock, it means 50,000 you have in positive, you have the stock in your hands, right? now work in progress में हो सकता है कि आपने जितना सामान काम पे लगाया है, right,
क्लोजिंग में ज़्यादा गया है और ओपनिंग में कम आया है, राइट। तो यानी कि जैसे जैसे आगे काम पूरा होता जाएगा आप और ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस में अपना सामान लगाते जाओगे। तो यहाँ हो सकता है कि आपके पास नेगेटिव अमाउंट आए, यस, 6,50,000 माइनस 10 लाख, you are gonna get negative amount of 3,50,000, isn't it? Yes, ओपनिंग कम आया है और जल्दी जल्दी काम आपने कर भी दिया, अच्छे से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को आगे बढ़ा दिया। तो इन्वेंट्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इज इन माइनस। सेम वे स्टॉक इन ट्रेड, जो आपके पास स्टॉक है ट्रेड में 9,50,000 ओपनिंग है, माइनस 14 लाख, so you are going to get 4,50,000 here negative. Now at the end, if we find the total of it, 50,000 minus 3,50,000 minus 4,50,000 in your calculator, you are gonna get the negative answer. आपके stocks in trade and work in progress and finished goods का changes in inventories का amount आएगा minus 7,50,000. Answer will be the negative amount. Yes, you can write the negative amount in the innermost column of expenses, यानी expenses में से बाकी सारी पॉजिटिव अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट फाइनली माइनस होगा और बाद में आपका टोटल एक्सपेंस आएगा। द कॉलम नंबर 4 you must remember. Further, from the information, prepare a note to employees benefit. बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। आपका खर्चा एम्प्लॉइज पे क्या हो रहा है ये कैसे फाइंड करना है। चलो, वेजेस बिल्कुल हमारा खर्चा है, एम्प्लॉइज पे ऐड करेंगे। यस, सैलरीज एम्प्लॉइज का खर्चा ऐड करेंगे। बोनस, यस वी विल ऐड। नाउ ग्रेचुइटी पेड, यस इट इज पेड टू द एम्प्लॉइज, isn't it? Gratuity paid to the employees, we are going to add, isn't it? Now medical expenses we are going to add. एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत बढ़िया। इस तरह की कंपनी अगर कोई एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रही है, डेफिनेटली अ गुड काइंड ऑफ कंपनी, वी मस्ट जॉइन इट फॉर श्योर, राइट। इट इज सेम लाइक माय कंपनी, right, where we do our job, do our work with full enjoyment and entertainment, with our full passion of work. So conveyance expense, अच्छा conveyance नहीं, आने जाने का खर्चा जो पेट्रोल अलाउंस या रीइंबर्समेंट गिना जाता है, द सेम। तो प्लस इन सभी को आप ऐड कर देंगे, so find the answers. 4,25,000। जस्ट फर्क इतना है कि ऊपर आपको नोट्स लिखना है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का हेडिंग लिखना है और अंदर यही सेम अमाउंट ऐड की जाएगी। 4,25,000 इज द आंसर। चलो बनाते हैं फाइनेंस कॉस्ट के लिए नोट्स फॉर द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये लास्ट वाला है, फाइनेंस कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, और इसके लिए सिर्फ नोट्स पूछे गए हैं। नोट्स आपको बनानी है फॉर अबेकस लिमिटेड। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन, यू पेड द इंटरेस्ट, यस इट इज योर कॉस्ट, प्लस इन द फाइनेंस कॉस्ट आप टर्म लोन ले चुके हैं, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। नाउ इंटरेस्ट पेड अगेन ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस इन फाइनेंस कॉस्ट। Discount on issue of debentures that has been written off. Now discount on debentures, it means it is to be written off in depreciation and amortization. Yes, इसीलिए इसे फाइनेंस कॉस्ट में गिनेंगे नहीं, ये नहीं गिना जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, भैया ये तो इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं है, इट इज नॉट अ कॉस्ट, तो इसे नहीं लिया जाएगा बिकॉज इट इज अदर इनकम। बैंक चार्जेस, यस फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, ऑल टाइप ऑफ पेड इंटरेस्ट आर फाइनेंस कॉस्ट। तो इन चार अमाउंट को आप ऐड करें विथ मी, 23,50,000 प्लस 36,000 प्लस with 10,585,000. So answer will be 24,81,000.
500। दैट्स इट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे आएंगे। होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत अच्छा और बहुत ही फायदेमंद रहा रहेगा, राइट। सो वी कंक्लूड हियर दैट वी आर going to work out more and more for your practical sums and practical examinations, right? And yes, I still remember, जाने से पहले आपका एक और क्वेश्चन हमारी तरफ से बाकी है, जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। यस, आई विल हाईलाइट दिस ऑल्सो, डोंट वरी। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो इसे याद करने की टेक्निक मेरी बहुत ही अलग रहेगी आप लोगों से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें याद रखे, लूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं सर? यस, दे आर द लूजर्स। अच्छा, अब याद रखो, याद करो उन पलों को जब आप बोर्ड एग्जाम्स की रिजल्ट के लिए वेट करते थे और आपके रिजल्ट पे आपसे ज्यादा आपके आसपास वाले लोग, जिनको आपका बर्थ डेट तक नहीं पता है, ये सब लोग आपके रिजल्ट पे तिरछी नजरें डाल के और आंख कान करके ध्यान से बैठे रहते थे, और हर बार आपका दिमाग खराब करते थे, ये पूछते हो कि बेटा क्या रिजल्ट आया। कई बार तो आपको भी बोलने का मन करता था, हिम्मत हमारे किटला, आपको क्या इससे, isn't it? बट ऐसा है, ऐसा आपके रिजल्ट्स के साथ जो होता था, उन लूजर्स की मैं बात कर रहा हूं। देखो, ये वही लोग हैं, वही लूजर्स हैं जो आपके रिजल्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। नाउ यू आर एबल टू गेट मी, isn't it? तो आपके रिजल्ट पे कुछ आपसे भी ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं ना। हु आर वी आर बिजनेस। बिजनेस के रिजल्ट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरेस्टेड लोग कौन होते हैं, isn't it? Now you will remember this forever throughout your life कि यूजर्स को कैसे याद रखना है, लूजर्स। तो आइए देखते हैं ये लूजर कौन कौन है, अपने फायदे के लिए हमारे रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं। देखते हैं। सबसे पहले होता है इंटरनल यूजर। दो बाइफरकेशन में यहां पर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ये नहीं घर वाले, जैसे कि हमारे ही खुद के लोग, हमारा मैनेजमेंट। अच्छा, हमारे मैनेजमेंट को हमारे रिजल्ट पता नहीं होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता करना है कि इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैनेजमेंट इस बार कंक्लूड करना चाहेगा, हाउ मच इज the business was efficient or not, how we can maximize the profit, isn't it? ये सारे डिसीजन कि भैया हम जो सेलिंग प्राइस रख रहे हैं ये बराबर है या नहीं, हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है या नहीं, या हम अपनी इन्वेस्टमेंट कम करके और नया प्रोजेक्ट भी बढ़ा सकते हैं या नहीं, isn't it? इस बिजनेस में इतना ही प्रॉफिट और कॉस्ट कटिंग करके, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और कम करके अगर देखें, तो इस तरह मैनेजमेंट को ये हेल्पफुल होगा। रिजल्ट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके लिए बहुत 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 यूजफुल हैं। इसके अलावा बाहर के भी लोग हैं, यस, एक्सटर्नल यूजर्स, जिनको हमारे रिजल्ट के बारे में बहुत 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 बेसब्री से इंतजार होता है। ऑब्वियसली यस, शेयर होल्डर्स टू कंट्रीब्यूट what is the financial strength of the company and position of the company, जिससे कि शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में, और शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी उठाना पड़ता है, isn't it? तो बेटर रिटर्न्स के साथ हमेशा बड़े बड़े रिस्क होते हैं। तो ये बिजनेस कितना रिस्की है या नहीं, इसके लिए शेयर होल्डर्स विल टेक केयर ऑफ इट। एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज आपके अर्निंग के बारे में ज़्यादा, इसीलिए आपके रिजल्ट के बारे में इसीलिए उत्सुक रहेंगे कि भैया अगर कंपनी कमाएगी तो हम कमाएंगे, isn't it? तो कंपनी में मुझे बोनस मिलेगा या नहीं, isn't it? परसेंटेज राइज इन माय सैलरी, वेजेस हर मंथ जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें मिलेगा या नहीं? यस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये है मनी लेंडर्स, दे प्रोवाइड लोन टू अस। तो भैया ये आपके रिजल्ट बिल्कुल से देखेंगे और अच्छे से देखने भी चाहिए। इसीलिए तो आप जब बैंक में जाते हो तो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपका इनकम प्रूफ लेके जाते हो कि देखो मैं आपसे लोन तो ले रहा हूँ
और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं उसे पे कर पाऊंगा, तो बैंक डजंट डाउट ऑन योर लेंडिंग कैपेसिटी, रिपेइंग कैपेसिटी। इसीलिए बैंक आपके कैपेसिटी को जज कर पाए, इसीलिए बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छे से इंटरेस्ट लेगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड सेगमेंट रिपोर्ट्स, बैंक चेक करता है कहाँ आपका पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, किस तरह से, whether you are going to pay it or not, repay it or not. Now credit rating agencies, जैसे आपने देखा होगा कि सिबिल स्कोर बनाया जाता है, isn't it? क्रिसिल स्कोर बनाया जाता है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारे बाहर वाले लोग हैं, बाहर के लोग हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस को अंदर से बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा दिया है, या सिर्फ इनको हमारा रिजल्ट देखना है। तो these rating influences how much the company pay to borrow it. तो ये जो क्रेडिट रेटिंग्स वाली कंपनीज हैं, ये हमें रेटिंग देंगी और इसकी रेटिंग्स पे हमारा क्रेडिट वर्थीनेस डिपेंड होगा। तो विल वी बी एबल टू पे इट easily or not, and will be able to they are going to rate our business on the basis of clearing our debt. तो इस हिसाब से इनको भी हमारा रिजल्ट चाहिए होता है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यस, अगेन इन्वेस्टर्स रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन सीकिंग व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस कितना कमा रहा है, बिजनेस आगे कितना तरक्की कर रहा है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं। फर्दर क्रेडिटर्स, सेम लाइक मनी लेंडर्स, फर्क सिर्फ इतना है, क्रेडिटर्स सप्लायर्स हैं, द वन हु सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अस, अगेन they won't doubt on our credit worthiness, इसीलिए will we be able to pay them money that we have borrowed from them, yes, इसीलिए इन्हें हमारे डिसीजंस और हमारे रिजल्ट की बेसब्री से इंतज़ार रहता है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, यस, अभी अभी जो सरकार बनी है इनको टैक्स हम पे करने वाले हैं, राइट, फॉर इनपुट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट टू मेक मोर इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन्हें हमारे रिजल्ट का वेट होता है, सो दैट दे कीप द स्लैब्स, दे कीप देयर बजट्स एज पर द टैक्सेशन, एज पर द रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग, उनका जो पैसा आ रहा है वो हमारे टैक्सेस से ही आएगा। तो गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ को हमारे रिजल्ट पे ही डिसाइड करना पड़ेगा, रिजल्ट से ही डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, these are the agencies that would like to study the financial statement to see whether the company is correctly maintaining its record or not. yes, सेबी की आंख होगी, नज़र होगी आपके आपके रिकॉर्ड्स पे कि आप अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो या नहीं, so that they have a responsibility, SEBI has a responsibility to look after the investors interest is well protected or not. That's it. So we completed our unit 2 here. नेक्स्ट यूनिट 3 में हम लेके आएंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एंड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस तरह से इसे बनाया जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज, डू कॉल, मैसेज एंड व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, गुड बाय।